One of my cute subscriber has commented some really meaningful things on one of the video. तो उसी के बारे में आज बात करेंगे. इस लड़के ने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं वैसे तो, और ये एक ही दिन में सारे वीडियोस देखने को बैठ गया भाई साहब. बट ये जो 3 कमेंट्स इसने एक वीडियो पे करे हैं, हम आज उन चीज़ों की बात करेंगे. उसकी पहली कमेंट मैं पढ़ रही हूँ. For me, princess treatment is like when I genuinely feel something for someone, I don't hold back. I give attention, care, effort, and try to make her feel truly special, like she really matters. It's so beautiful. क्योंकि जब तक आप एक्शंस से चीज़ें दिखाते नहीं, सामने वाले को नहीं समझ में आता कि आपके दिमाग में क्या है. वी आर नॉट माइंड रीडर्स. फॉर मी इट्स नॉट always about looks or who is most beautiful. It's about what I feel for that person. Someone can be average looking, but if the energy feels right, that's what matters to me. And that's what should matter to everyone, I guess. But the painful part is I never get that same energy back most of the time. It's just reactions, emojis, or simple replies. And I won't lie, that hurts more than I show. The problem here is you are only showing what you feel about the other person. You are not showing what you feel and how you feel about all these situations. I'm not asking for perfection, but I do want something real. I want effort, presence, and that same intensity I give. Because when it's one sided, it starts to feel lonely, even when I'm giving my best. Effort, presence is very basic things. Like you're doing something and the other person is also doing something. But intensity, Mitra, intensity cannot be same. We will explain this later. Sometimes when you are in relationship and when you see that you are on different page and other person is on different page, you can feel like you are living single life even in relationship. And yeah, that sucks. I just want something genuine where both people actually feel and show it, not just one person trying and other person receiving. बहुत ज़्यादा गहरी बात बोली भाई, एंड आई कैन रिलेट टू दिस कि सामने वाला रिसीविंग मोड में ही है एंड यू आर ओनली इन गिवर मोड, क्योंकि आपको वो आदत बन गई है और उसको भी बस वो आदत बन गई है. Second comment of him: the worst part about one sided effort is not silence, it's imbalance. When someone gives you real attention, time, emotion, and all they get back is love emoji or a few dry lines, it slowly stops feeling cute and starts feeling disrespectful. ये लड़का कुछ ऐसे सरस्वती इसके हाथ में आके बैठी थी कि इसने सब कुछ सच सच लिख दिया भाई. At first, small things feel special, but when that's all you ever get, it feels like your depth is being reduced to something effortless. And the truth is simple: if someone can receive everything from you without even trying, most people won't try harder. तुमको सब पता है ब्रो, तुमको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तुमको पता है कि सॉल्यूशन भी क्या है. Attention is easy to give, effort is rare. And if effort doesn't come back, that tells you everything you need to know sometimes. Loving someone unconditionally doesn't feel pure, it starts to feel disrespectful. Not because love is wrong, but because when you keep giving your time, effort, and emotions without anything coming back. And his third comment was: I am a giver, I give a lot without expecting anything back. But when I truly like someone, I just need a little real effort in return, not just emojis or dry replies. Sometimes I blame myself, thinking maybe it's because of my looks or something I lack. But deep down, I know I was genuine. I gave someone my attention for a long time, and one day they chose someone else. I didn't even have the right to be angry because I never said how I felt. That's what hurt the most, feeling like background noise when they move on. Now, even small things like late replies make people overthink, and it slowly damages how we connect with others. I don't need everything back, just a little real efforts, a little presence, something that shows it's not one sided. पहले तो भाई, you are so pure soul.
for being so expressive and to genuinely tell how you feel. क्योंकि men are conditioned like you cannot express yourself, you cannot show that love. I have talked with people on dates, और जब मैं लड़कों से बात करती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि वो कितने बंधे हुए हैं, उनकी इमोशंस कितने बंधे हुए हैं, वो देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रो बहुत ही डेंजर चीज़ है उनके लिए. बट भाई तेरी केस इतनी ज़्यादा सुंदर है कि तू इतना एक्सप्रेसिव है एंड तू इतना गिविंग है रिलेशनशिप में. द प्रॉब्लम हियर इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ इंटेंसिटी. तुम्हारी जो इंटेंसिटी है वो अलग हो सकती है सामने वाले की इंटेंसिटी. एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि आई एम ऑल्सो लाइक दैट. आई रियली show my emotions, I really talk, and I talk straight about things. But when I don't get the same response, I start feeling कि भाई maybe we are not on a same page. उसकी वजह से मैंने किसी के साथ बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि I was thinking कि we are very different people. But when we reconnected and when we talked, वो लड़के ने मेरे को बोल के दिखाया कि दिशा, I have not talked this much to anyone, नॉट इवन माई फैमिली मेम्बर्स. मैं इतनी बातें नहीं करता, आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव. तो दैट इज़ वाई आई टॉक लेस, आई एम लिटिल रिजर्व. वो मेरी कंडीशनिंग वैसे है. यू वॉन्ट मी टू टॉक बट आई हैव नेवर डन दैट इन माई लाइफ. तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा. जब ये चीज़ उसने मुझे बोली तब मुझे समझ में आया कि यार इंटेंसिटी भी सेम हो सकती है, बट एक्सप्रेशन कैसे करना है वो एक्सप्रेस चीज़, उसमें डिफरेंस आ सकता है. आई हैव रिटन दिस थिंग्स ऑन माई ब्लॉग. यू कैन रीड द होल स्टोरी ऑन माई ब्लॉग. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. हमको सेम रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते, जब हमको सेम रिप्लाईज नहीं मिलते तो हमारी अंदर की जो चीज़ें हैं वो ऐसे बहलने लगती है. हमको ऐसा लगने लगता है मे बी वी आर लेस समवेयर, और मे बी दे डू नॉट लाइक अस, मे बी देर इज सम प्रॉब्लम इन मी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. You need to understand that this all voices are in our head. There are two possibilities कि ये सब सच है और सामने वाला आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब सच नहीं है और तुम्हारा माइंड तुमको रिएक्शंस दे रहा है बेस्ड ऑन वॉट एवर योर माइंड सेट इज़ इन रिलेशनशिप. जब सामने वाले को हर चीज़, एफर्ट्स, पैम्परिंग ऐसे ही मिल रही है तो दे फील लाइक अरे इट इज़ नॉर्मल फॉर अस. और जब हमको वो चीज़ नहीं मिलती तो हमको लगने लगता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, है ना. दिस इज़ समथिंग स्पेशल, बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. एंड यू आर राइट, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ प्यार होना और अंडरस्टैंडिंग होना इनफ नहीं हो. वी नीड वर्ड्स टू काम आवर माइंड एंड इट्स कम्प्लीटली रीजनेबल थिंग. इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, यू शुड कम्युनिकेट इट विथ योर पार्टनर. यू कैनॉट हैव दिस इन योर हेड ओनली कि भाई मेरे को ये तुमसे चाहिए. अगर वो एस्ट्रोलॉजी में होंगे, वो माइंड रीड कर सकते होंगे, वो सुहानी शाह जो है वैसे वाला कुछ होगा तो ठीक है. अगर वो माइंड रीड नहीं कर सकती तो यू हैव टू टॉक. तुम अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो, उसके लिए बात कर रहे हो. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग जस्ट अबाउट हर, शी विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड. ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ. बट व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, when you will be talking about your feelings, when you will be talking about your family, friends, तुम अभी उसके वर्ल्ड में जाके उसकी ज़िंदगी जी रहे हो, समझ रहे हो. तुमको तुम्हारी ज़िंदगी जी के उसको अपने वर्ल्ड के बारे में बताना है. तुम दोनों के वर्ल्ड अलग अलग है, उनको आस पास लाना है. बट ऐसे ना हो कि सिर्फ तुम ही ला रहे हो वो वर्ल्ड पास, वो नहीं ला रहे, समझ रहे हो. अभी तुम उसके वर्ल्ड में जा रहे हो, उसको पता नहीं कि तुम्हारा खुद का भी वर्ल्ड है, तो तुमको तुम्हारा वर्ल्ड दिखाना. भाई साहब मैंने कितना कंफ्यूज कर दिया. यू कैनॉट बी लाइक भाई तू भगवान और मैं इंसान. अगर तुम सामने वाले को वो वाली ट्रीटमेंट दोगे, अगर तुम किसी को भी इन जनरल, माँ बाप हो कोई भी हो, तुम भगवान बना के रखोगे, तुमको प्रॉब्लम होगी. तुमको उनको नॉर्मल लेवल पे देखना पड़ेगा और खुद नॉर्मल लेवल पर रह के फिर बातें करनी पड़ेगी. एंड आई नो व्हेन इट स्टार्ट्स ब्रो, हमको ऐसा लगता है कि भाई ही इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो क्यूट, वी वांट टू नो मोर अबाउट देम. येस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू नो मोर अबाउट योर पार्टनर.
शेयर योर लाइफ एज वेल, ठीक है, शेयर योर थिंग्स एज वेल, दे शुड नो हु यू आर. I was not that much interested in the person when the talk was only around me. मेरे को ऐसा लगता था भाई मैं यूट्यूबर हूँ तो बस मेरे बारे में ही बातें, मेरे को पसंद नहीं वो चीज़. बट वैन ही ऑल्सो बिकेम द सब्जेक्ट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द कॉन्वर्सेशन, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ ही इज़ एज अ पर्सन एंड समवेयर दैट मेड मी अश्योर कि भाई वो मुझे इन्वॉल्व कर रहा है उसकी लाइफ में. और जब मुझे ये अश्योरेंस मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ठीक है, वी आर ऑन इक्वल पेज. अब तक मुझे ऐसा लग रहा था भाई बस मैं हूँ रिलेशनशिप में, ठीक है, यू आर ओनली गोइंग इन हर वर्ल्ड और तुम उसको सिर्फ ये बता रहे हो कि वो तुम्हारी लाइफ में आके कितना बड़ा काम कर दी है ना. ये चीज़ें अगर तुम्हारी लाइफ में हो रही, यू नीड टू बी लाइक एंड यू नीड टू मेक योर वर्ल्ड विजिबल टू हर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू आर वेरी एक्सप्रेसिव. आई एम टेलिंग यू कि जो भी हमारे साथ होता है ना वो भगवान की कुछ ना कुछ तो साजिश होती है उसके पीछे, ठीक है. अभी हमको पेन होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ब्रो दिस इज़ नॉट गुड, यू नो, आई एम गेटिंग हर्ट. ये चीज़ें, हमारा दिल दुखना जायज़ है, बट मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न्स हैं. अगर रीजंस नहीं होते, अगर किसी चीज़ के पीछे रीज़न नहीं होता तो मेरी तो पहले इसमें ही शादी हो जाती. ना मैं यूट्यूब चैनल ओपन करती, ना मैं उसके बारे में बोलती, ना लोगों को पता चलता, ना ही मेरे दोस्त बनते, ना ही वो लोग मेरे को ईमेल करके बताते कि दीदी तुम्हारी स्टोरी की वजह से हमारी अटैचमेंट कम हो गई. सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न माई फ्रेंड. हमको ये समझ नहीं आता कि क्या रीज़न होगा. हम बस इतना कर सकते हैं कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं. और इंट्रोस्पेक्शन में ये चीज़ डाल देना कि in relationship I will not be single, in relationship I will not be the only person who is going to give things. And one more important thing from your comments, you said you don't have expectation, but clearly you have expectation and there is nothing wrong with having expectation, ठीक है. होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन. ऐसा नहीं होता कि नहीं तुम कैसे भी बिहेव करो मेरे को चल जाएगा, तुम रहो एकदम निर्वाणा में और मैं टेंशन लूँ और मैं तुमसे अटैच हो जाऊँ. ऐसे भी मत चलो, ठीक है. हैव एक्सपेक्टेशंस एंड कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशन वेरी वेल. जब तुम कम्युनिकेट करोगे तब सामने वाले को समझेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. लेट मी टेल यू वन थिंग, लड़कियों के डीएम्स में 100 लोग पड़े होते हैं जो उनको बताते हैं यू आर वेरी सेक्सी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर दिस टू मी, यू आर लाइफ टू मी, यू आर दिस, यू आर दैट, ठीक है. अभी इतने 100 लोगों में जेन्युइन लोग हमको कैसे समझ आए? वी आर नॉट गोइंग टू फिल्टर आउट एवरी पर्सन, वी आर नॉट गोइंग टू फिल्टर आउट दोज पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू सी भाई इसने इतने एफर्ट्स डाले, इसने इतने एफर्ट्स डाले, सारे लोग एफर्ट्स ही डाल रहे हैं. द थिंग दैट विल मेक यू डिफरेंट इज व्हेन यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ. If you are only just going to talk about the other person, the importance of them in a relationship will be different than yours. Different kinds of level is little bit hard, है ना. So the people in the relationship should be on the same level. The transparency should be similar, the commitment should be similar, the level should be similar. It happens, it takes time. You have to do reverse engineering and you have to think कि भाई मैंने कहाँ पे कितना टाइम दिया है और कितने एफर्ट्स दिए और क्यों दिए और कितने देने चाहिए थे, मैंने कैसे बिहेव करना चाहिए था. अपनी रिलेशनशिप को एक एक्सपेरिमेंट बना लो और थिंक अबाउट इट कि मैं यहाँ से क्या सीख के गया हूँ, क्या आगे की रिलेशनशिप में कर सकता हूँ. इस रिलेशनशिप में खुद को दोष मत दो और आगे की भी मत दो. इट्स ओके, लाइफ हैपन्स, थिंग हैपन्स. उस लड़की को कभी ना कभी समझ में आएगा. एक्सपीरियंस से सीख के जाओ. इट शुड बी दिस. अभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी को एक्सप्रेस भी करना आता है बट दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस विथ यू. इफ़ दैट इज़ द केस, ठीक है, वर्स्ट वाली केस, तो वहाँ पे यू हैव टू लीव द पर्सन. यू कैन नॉट बी लाइक भाई तू तो सबके साथ ठीक है बट मेरे साथ ऐसा है तो आई एम ओके विथ दैट. नो नो, देयर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू लेट देम गो. इट्स हार्ड थिंग बट जैसे तुमने बोला कि कुछ टाइम के बाद वो डिसरिस्पेक्टफुल फील होने लगता है जब आप दूसरे वेवलेंथ पे और वो दूसरे वेवलेंथ पे है. आपको वही कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा, आपको वही अफेक्शन रिसीव नहीं हो रहा. जिस मिनट तुमको ये चीज़ लगेगी, टॉक विद देम, कम्युनिकेट विद देम. इफ़ इट इज़ देयर जेन्युइन प्रॉब्लम, दे हैव सम काइंड ऑफ ट्रॉमा अराउंड इट, दे हैव सम काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड इट, इट्स ओके. एंड इफ़ दे आर जस्ट प्लेइंग विद यू, देयर आर कितने 4 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, ठीक है.
तो एक के पीछे भाग के फ़ायदा नहीं है, हमको मिल जाएंगे ब्रो. Love is abundant thing and you deserve to feel the love, you deserve to feel the happiness. Whoever this person is, God, please 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 help him and give him the best partner. हम सब प्रे करेंगे तेरे लिए, ठीक है? You don't have to worry about it. I hope you learned a thing or two in this, and I really feel like we should make a series like this. You guys put your things in the comment section and I'll make a video on it. ठीक है? That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.